Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I'm Anshikakrishnatray and I'm back with another episode, lecture, whatever you want to call it, on light chapter 1. So since the past two lectures we have discussed about the two types of mirrors, its image formations and its various uses. Today we will be discussing about a bunch of questions which are related to those two lectures. So please do check them out and then come to this video because it will be a refreshing topic for all of you. We will be revising, learn a new concept of magnification and then practicing those two concepts in this video by a bunch of questions. So let's first recap what we have done in the past two lectures, and also I'll be showing you a little trick on how to memorize these image formations so that you don't get in a hurry or you don't confuse at the examination point of view where there is a lot of amount of stress or pressure on your mind. So let's get started. First, I have concave mirrors. Concave mirrors, as I've already told you, are converging mirrors. But why are they converging mirrors? The answer to the why part is that whenever two rays, in reality I've told you that a number of rays that are surrounded in this light, I'm surrounded, my focus has a number of rays, but when we draw it on paper में हम only we consider two rays to get a little idea of what will be the image by this type of mirror. So two जो हम rays ले रहे हैं इसमें है the first ray which will be contacting या intersecting the mirror and then diverge, ये diverge करके कहाँ मिलेगी आपको, फोकस पे मिलेगी. जो भी आपकी जो रेज होती हैं जो पैरेलल जाती हैं कॉनकेव मिरर के, वो डाइवर्ज होकर फोकस पे मीट करती हैं. एवरी रेज विच आर पैरेलल टू द कॉन्वेक्स मिरर्स डाइवर्ज एंड देन इंटरसेक्ट ऑल दोज रेज एट द फोकस ऑफ द मिरर. इसलिए उस मिरर्स को हम कन्वर्जिंग मिरर्स कहते हैं बिकॉज ऑल दोज रेज कन्वर्ज एट द फोकस. तो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो. अब जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एक रेज आके मिरर से इंटरसेक्ट करती है और फिर पास हो जाती है इन बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर. सेकेंड जो रे आती है वो आपकी पोल पे इंटरसेक्ट होती है, पोल पे लाइन करती है एंड देन वो डाइवर्जेस over here. So the image is formed at the focus. It is inverted. It is a real image. We are not have a dotted line, so it's not virtual. It's a real image and also it's a very small image. Small image का मतलब ये हुआ compared to the size of the object. Image का size छोटा है, बहुत छोटा है. Okay, so we have done one case which is when the object is placed at infinity and the image is formed at the focus. Second, when object is placed far from the center of curvature. Center of curvature is the center of the sphere from which the mirror, which is a part of the sphere, has been cut out. तो center of curvature से दूर होती है, infinity पे नहीं, but at a certain amount of distance कि उस पे mirror पे rays आके intersect कर सकती है और हम बना सकते हैं. तो two rays हम आएंगी and it will meet between the center of curvature and the focus. फिर नेक्स्ट केस है जब when the object is placed at the center of curvature, the image will be formed at the center of curvature only which is of the same size. Second, when object is placed between the center of curvature and the focus and the image is formed beyond the center of curvature. Then next is when the image is at the focus and when the object is at the focus, the image formed will be at infinity. And when the object is between the focus and the pole of the mirror, we have a virtual image. The dotted line, the virtual image, which is behind the mirror, जो कि हम screens पे देखते हैं, हमारी movie screens are, all those screens are virtual screens. अब a trick to memorize, जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे है उतनी मिरर से पास आपकी इमेज बनेगी. जैसे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे है और आपकी इमेज बन रही है एट द फोकस, फिर थोड़ा पास आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की थोड़ा पास आ गया, तो इमेज आपकी बन गई बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस. फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ गया
तो इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गई, और जब आपका फोकस पे आ गया तो वो इन्फिनिटी पे चली गई, और जब फोकस और पोल के बीच में आ गया तो वो वर्चुअल हो गई। जितना दूर उतना ऐसे ऐसे आप विजुअलाइज करके देखें। 2-3 चीज़ें तो आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, दोनों सिमिलर ही केसेस हैं, बस उनके अपोजिट चीज़ें हैं। एंड व्हेन द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट, तो वो इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। आई होप दैट्स क्लियर। वन मोर पॉइंट इज दैट u is the distance of the object from the mirror. u is the distance of the object from the mirror, जो कि हमेशा नेगेटिव में होगा। अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है, तो राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, अप इज़ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड नीचे भी आपका नेगेटिव। तो अगर आप इस मिरर को एक कार्टेशियन प्लेस पे प्लेस करके देखें, जिसमें इसका पोल विल बी द ओरिजिन, और आपका फोकस कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि स्पेयर तो ये है ना इसका, दिस इज़ द स्पेयर, इससे ये मिरर काटा है, तो इसका फोकस विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए हमेशा कॉनकेव मिरर का फोकस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इमेज भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही प्लेस होगी, इसलिए द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी नेगेटिव, एंड द इमेज जो होगी आपकी वो भी नेगेटिव होगी इन दीज केसेस एक्सेप्ट दिस वर्चुअल पार्ट। इस पार्ट के वर्चुअल हमेशा आपकी इमेज भी नेगेटिव ही रहती है, बिकॉज वो भी सेम साइड ऑफ द फोकस पे बनती है इमेज। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर, जो कि इससे बहुत ईजी है। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस होते हैं, एंड इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि जितनी भी रेज, ऑल दोज रेज विच आर कमिंग एट द मिरर आर गेटिंग डाइवर्ज्ड, वो बहुत ही लार्ज एंगल से वापस जा रही हैं। सो व्हेन 2 रेज हियर यहाँ पे आ रही हैं, वापस जाती हैं, अगर हम इस नॉर्मल का डॉटेड लाइन करें, इट विल मीट एट द फोकस बट वर्चुअली विच इज़ बिहाइंड द मिरर। सिमिलरली यहाँ पे पोल पे जाके यहाँ पोल से वापस आ रही है, इंटरसेक्टिंग एट द पोल, तो इसके हम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे, तो वो हमें पोल और फोकस के बीच में हमारी इमेज मिलेगी, जो कि बहुत बहुत छोटी होगी, एंड दिस विल बी डिमिनिश्ड, जैसे डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी होगी, एंड वर्चुअल। अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस इस साइड है, क्योंकि ये हमारा स्फेयर है, इससे हमारा मिरर कट किया गया है, तो जो इमेज होगी, तो जो हमारा फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, पोल हमारा ओरिजिन है राइट, सो इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, तो जो फोकस होगा आपका दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन्स में द राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकस पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, द इमेज फॉर्म्ड विल बी पॉजिटिव, द इमेज फॉर्म्ड V विल बी पॉजिटिव ओनली, बट द डिस्टेंस जो आपका U है, ऑब्जेक्ट जो आपका प्लेस्ड है मिरर से, वो हमेशा नेगेटिव होगा। दोनों केस में वो नेगेटिव ही होगा, ओनली फॉर मिरर्स आई मे टेल यू। सेकेंड केस ये है कि आपका यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट पास में मिरर के, उसने 2 रेज भेजी, एक रेज गई, उसका डॉटेड किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, एंड सेकेंड रे गई आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, या थोड़े एंगल से डाइवर्ज हो गई, इसका आपने रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड किया, इट विल मीट एट द फोकस। एज वी ऑल नो, पैरेलल टू द मिरर एक्स को एक्सटेंड करेंगे तो इट विल मीट एट द फोकस ओनली। तो फोकस पे फिर हमने जहाँ 2 रेज मिली उसमें डॉटेड लाइन क्रिएट की, तो पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे भी इमेज बनी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी हो, आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे भी हो, इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। और ये आपका ये ख़त्म हो गया। इसमें मैंने आपका ये बताया है, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है वो भी वहीं लिखा है। अब ये है हमारा मिरर फॉर्मूला विच वी हैव डिस्कस्ड, 1F इज इक्वल टू 1U प्लस 1V। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने नहीं किया, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक और आज ही हो जाएगा। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो फॉर्मूला हो गया। रियल सेंस में व्हाट इट मीन्स कि साइज ऑफ द इमेज में कितना फ़र्क है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से।
फ़र्क का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स डिवाइड. हाउ मच लार्जर, बाय व्हाट रेशियो इज़ द इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. इस रेशियो की यहाँ बात हो रही है. उस रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं. कितना बड़ा है इमेज ऑब्जेक्ट से. ओके अगर आप कोई मिरर वाले म्यूज़ियम गए हो या कोई पार्क गए हो तो वहाँ पे मिरर्स प्लेस्ड होते हैं. उसमें कुछ मिरर में आप बहुत लंबे लगते हो, कुछ मिरर में बहुत छोटे लगते हो, कुछ मिरर मोटे लगते हो, कुछ मिरर में आप स्ट्रेच्ड लगते हो, आपकी उंगलियाँ बहुत लंबी लंबी लगती हैं. ऑल दीज हैव डिफरेंस इन देयर फोकस. ये सिर्फ फोकस का डिफरेंस होता है इन सब मिरर्स में, ठीक है. और मैग्निफिकेशन का डिफरेंस होता है. तो इसमें आपका हो गया हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ h2 बाई h1. अब अगर आपकी मैग्निफिकेशन, मैं पहले नॉर्मल केस बता देती हूँ, विच इज़ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है तो साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों सेम है. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1. मतलब जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपका इमेज का है, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 कहते हैं. सेम साइज. अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो मतलब साइज ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज बन रही है वो ज़्यादा है और जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कम है. यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ. इमेज ज़्यादा बन रही है यहाँ पे. दिस इज़ द इमेज, ये आपकी इमेज है एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बन रही है. सो इट्स मैग्निफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1. और अगर मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 हो तो इमेज कम है और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है. जैसे कि यहाँ व्हाट शुड आई से, यहाँ पे इन्फिनिटी से रे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा है बट इमेज आपकी बहुत कम और डिमिनिश्ड बन रही है. ओके तो ये यहाँ पे ये केसेस हो गए. एंड ये हमारा था क्विक रिकैप of what we did today also and on the past 2 lectures. I hope this helps a lot and comments are always appreciated. Thank you for watching.